શકીએ છીએ. ઓકે, તો એને ગુજરાતીમાં કહેવાય સ્પર્ધાત્મક વિનિમય પ્રક્રિયા. સ્પર્ધાત્મક વિનિમય પ્રક્રિયા ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કોમ્પિટિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન. હવે આ છે ને ખરેખર તો ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીનો ટોપિક છે, પણ આપણે અહીંયા જ એની વાત કરવી એવું ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીની ચિંતા નહીં કરવી આપણે. જો ટોપિકમાં શું હે, તો એમ કીધું કે એક બીકર હશે. ઓકે, એના અંદર તમે કોઈ બી એને ક્ષાર લઈ લો, સોલ્ટ. એના અંદર કોઈ બી સોલ્ટ લઈ લો, ગમે તે ધાતુનું. માન લો કે તમે CuSO4 નું દ્રાવણ લીધું હોય, તમે અંદર જે સોલ્યુશન લીધું હોય એ CuSO4 નું લીધું છો. હવે તમે એના અંદર ઝીંકનો સળિયો મૂકો છો, મતલબ ઝીંકનો રોડ આના અંદર ઊભો કરો છો, તો થશે કેવું કે રિએક્શન થશે. આવી રિએક્શન થશે Zn વત્તા CuSO4, તો બનશે આવું કે ZnSO4 પ્લસ Cu. મતલબ શું અહીંયા કે ધીમે ધીમે આ જે ઝીંકનો જે રોડ હે ને, ઝીંકનો જે સળિયો, એનું ઓક્સિડેશન થઈ રહ્યું. મતલબ ઝીંકનો જે રોડ હે એનું ઓક્સિડેશન થઈ રહ્યું. દેખો અહીંયા ઝીંક એ 0 है ઓક્સિડેશન નંબર, એમાંથી ઝીંકનો +2 થાય. એનો મતલબ કે ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થઈ રહ્યું અહીંયા. અને જે કોપર હે ને એનું રિડક્શન થઈ રહ્યું, કેમ કે અહીંયા કોપરનો +2 માંથી કોપરનો 0 થઈ રહ્યું. તો થઈ રહ્યું કેવું હોય કે જ્યારે ઝીંકના રોડને કોપર સલ્ફેટના સોલ્યુશનમાં મૂકીએ ને તો રિએક્શન થઈ રહી, મતલબ કે ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થઈ રહ્યું. તો એનો મતલબ શું થયો? તો એનો મતલબ એવો થયો કે ઝીંક હે ને એની ઓક્સિડેશનની ટેન્ડન્સી, મતલબ કે આની ઓક્સિડેશન પામવાની વૃત્તિ, ટેન્ડન્સી ઓફ ઓક્સિડેશન એ કોપર કરતાં વધારે છે. હા, ઝીંક ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. ઓકે, તો ઝીંકની જે ઓક્સિડેશનની ટેન્ડન્સી છે એ વધારે, ક્લિયર, કોપરની ઓછી છે. તો હવે આ બધું તમારે સમજવું પડશે કે કોણ કોનું ઓક્સિડેશન કરે અને કોણ કોનું ઓક્સિડેશન ના કરી શકે. તો એના માટે તમારે EMF સિરીઝ સમજવી પડશે. હવે EMF સિરીઝ શું હોય તો એ ધ્યાન રાખજો, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ સિરીઝ એવું કહેવાય એને. તો EMF સિરીઝમાં એના આવો એક ઓર્ડર હે કે ભાઈ લિથિયમ લીના લે કટરીના, લે કટરીના, કોઈ નહીં મેરે આગે, જુઓ ફિર પીછે હે, એવી એક સિરીઝ છે. તો આનું જે લિથિયમનું હે ને એનું જે રિડક્શન પોટેન્શિયલ હે એ -3.05 વોલ્ટ હે, એનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ. EMF સિરીઝમાં તમે સૌથી ઉપર દેખશો ને તો ફ્લોરિન હશે, અને એનું જે રિડક્શન પોટેન્શિયલ હે એ હશે +2.87 વોલ્ટ. તો EMF સિરીઝમાં ફર્સ્ટમાં ફ્લોરિન હે, लास्ट में लिथियम है. ध्यान रखो, EMF सीरीज फर्स्ट में फ्लोरीन, लास्ट में है लिथियम. तो आ EMF सीरीज है. અને EMF સિરીઝમાં અહીંયા જે રિડક્શન પોટેન્શિયલનું વેલ્યુ છે, ફર્સ્ટમાં જે રિડક્શન પોટેન્શિયલની વેલ્યુ છે એ કેટલી છે 2.87, અને નીચે આવવાથી રિડક્શન પોટેન્શિયલની જે વેલ્યુ છે એ છે -3.05 વોલ્ટ. મતલબ જેમ જેમ તમે EMF સિરીઝમાં ઉપરથી નીચે આવશો एम रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज થશે. जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा. और ये ध्यान रखना, फर्स्ट में फ्लोरीन है, लास्ट में लिथियम. अभी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा. ये ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा. बस यही समझना है. ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसको ऐसे मोड में रखते हैं. मोड એટલે હવે ગુજરાતીમાં કહેવાય એને માનાંક. માનાંક આવે ને એમાં રાખેલું હાઇડ્રોજનને. હા,
અને હાઇડ્રોજનની જે વેલ્યુ હે ને રિડક્શન પોટેન્શિયલની એ 0 હે, એટલા માટે હાઇડ્રોજનને રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ કહેવાય, સાપેક્ષ વિદ્યુત ધ્રુવ. આ બધાની જે રિડક્શન પોટેન્શિયલની જે વેલ્યુ હે ને એ હાઇડ્રોજન સાથે નક્કી કરીએ. મતલબ લિથિયમ હે ને તો એને પહેલા હાઇડ્રોજન સાથે જોડ્યો, કનેક્ટ કર્યો, પછી પોટેન્શિયોમીટરમાં જે વેલ્યુ આવી એ જોઈ. મતલબ કોઈ બીની રિડક્શન પોટેન્શિયલની જે વેલ્યુ હે ને એ હાઇડ્રોજન સાથે કનેક્ટ કરીને પછી નક્કી થઈએ. એ બધું ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં સમજીશું આપણે વધારે. એટલે હાઇડ્રોજનને રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ બી કહેવાય ને હાઇડ્રોજનની વેલ્યુ 0 હોય. હાઇડ્રોજનથી ઉપર જશો ને તમે EMF સિરીઝમાં તો વેલ્યુ પોઝિટિવ થશે, અને હાઇડ્રોજનથી નીચે આવશો देखो हाइड्रोजनની વેલ્યુ 0 હે, હાઇડ્રોજનથી ઉપર જશો ને તો વેલ્યુ પોઝિટિવ હશે, અને હાઇડ્રોજન નીચે આવશો ને तो वैल्यू नेगेटिव हसे EMF सीरीज में. कोनी रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है ना, हाइड्रोजन की 0 है रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे आने से कम होगा. अभी EMF सीरीज की डेफिनेशन क्या है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर उसी को बोलते हैं EMF सीरीज. रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर उसी को बोलते हैं EMF सीरीज. ગુજરાતીમાં કહેવાય રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોના ઉતરતા ક્રમને ગોઠવવાથી બનતી શ્રેણીને EMF શ્રેણી કહે છે. ઓકે, હવે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ અને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ એમની વેલ્યુ સેમ હોય, જુદી હોય તો ખાલી એમની સાઇન. માન લો કે આ પોઝિટિવ હશે તો આ નેગેટિવ હશે, તો થશે કેવું કે EMF સિરીઝમાં ફર્સ્ટમાં ફ્લોરિન હે, લાસ્ટમાં લિથિયમ હે. આનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલું હે 2.87, આનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલું હે -3.05 વોલ્ટ. તો દેખો રિડક્શન પોટેન્શિયલની વેલ્યુનો શું હે ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર. હવે આને હું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલમાં કન્વર્ટ કરી દઉં તો આ કેટલી થઈ જશે -2.87 થઈ જશે અગર ઓક્સિડેશનમાં કન્વર્ટ કરું તો, ને આ કેટલો થશે +3.05 થશે. તો EMF સિરીઝની બીજી પણ એક ડેફિનેશન છે કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ એની વેલ્યુ નો એનો ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર है ना, रिडक्शन पोटेंशियलની વેલ્યુનો ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર અથવા ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલની વેલ્યુનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર है ना, તો એ બંનેને EMF સિરીઝ કહેવાય. ધ્યાન રાખજો, EMF સિરીઝની બે ડેફિનેશન થશે. પહેલી ડેફિનેશન રિડક્શન પોટેન્શિયલની વેલ્યુનો ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર મતલબ EMF સિરીઝ. બીજી ડેફિનેશન ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલની વેલ્યુનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર મતલબ બી EMF સિરીઝ. એનો બી મતલબ EMF સિરીઝ, પહેલાનો બી મતલબ EMF સિરીઝ. ઓકે, હવે જે હું બોલું ને ખાસ ધ્યાન રાખજો. આટલા સુધી ખબર પડી બધાને? ચલો હવે रिडक्शन पोटेंशियल જેનું વધારે એનું रिडक्शन થાય, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा. और हम काम करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा. वो क्या बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ध्यान रखना. चलो ये फ्लोरीन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 2.87. नीचे आने से ये लिथियम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है -3.05 वोल्ट. रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में से ज़्यादा किसका फ्लोरीन का. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका क्या होगा रिडक्शन, तो वो क्या बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी. मतलब ऑक्सीडेशन करता तरीकेની પ્રબળતા ઘટશે. રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એની જે સ્ટ્રેન્થ હશે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. તો મેં તમને ભણાવ્યું તો યાદ હે
સૌથી બેસ્ટ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ ફ્લોરિન અને સૌથી બેસ્ટ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ લિથિયમ. નોન એક્વાયસ સોલ્યુશનમાં, એક્વાયસ સોલ્યુશનમાં સૌથી બેસ્ટ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ સીજીએમ है. એ પહેલા આપણે વાત કરીએ તો આ અમુક સિમ્પલ ટ્રેન્ડ है. ઓકે, આઈએમએફ સિરીઝ ઉપરથી હવે કઈ રિએક્શન થશે કઈ નહીં થાય એ સમજવાની है. ચલો તો ઈએમએફ સિરીઝ પહેલા જોઈ લો તમે હે કેવી, અને એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. देखा ही बता ईएमएफ सीरीज. देखो लास्ट में लिथियम है, પછી પોટેशियम, ले कटरीना, कोई नहीं मेरे आगे, जुओ, फिर पीछे. અને આઈએમએફ સિરીઝ છે તમારી. સૌથી વધારે જે વેલ્યુ है ચલો વેલ્યુ હવે સાઈડમાં લખેલી દેખાતી નહીં, કેવી તો જોવાની. હતું નહીં, અહીંયા લખેલી વેલ્યુ આટલે જે એરો ફરે ને ત્યાં. વાંધો નહીં, વેલ્યુ તો કંઈ મતલબ નહીં, મેં તમને કહી દીધું. આનો +2.87 है, આની -3.05 વોલ્ટ. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા એને બુકમાં આ વસ્તુ જોડે લઈને બેહો. હવે સમજો કે થશે કેવું કે મારા જોડે માન લો કે કેલ્શિયમ है. अगर कैल्शियम નો રોડ है મારા જોડે, રોડ મતલબ સળિયો, ભાઈ ગુજરાતી વાળા નવું નવું ના બનાવતા રોડ. ચલો મારા જોડે કેલ્શિયમ નો રોડ है, કેલ્શિયમ નો સળિયો है, અને જે સોલ્યુશન है ને એ નિકલનું है. ચલો નિકલનું સોલ્યુશન है. ચલો હવે મને કોઈ રિએક્શન થશે કે નહીં. સળિયો કેલ્શિયમનો અને સોલ્યુશન નિકલનું है, તો રિએક્શન થશે કે નહીં? થશે. અને ધ્યાન રાખજો, નીચે વાળો હોય ને એ ઉપર વાળાનું કાન નોકે રિએક્શન. મતલબ અગર રોડ નીચેનો હશે, સળિયો નીચેનો હશે અને સોલ્યુશન ઉપરનું હશે તો વાટ લગાડી દેશે, है ना. ध्यान રાખજો, એટલે નીચે વાળો ઉપર વાળાની जैसी तैसी करे, આ સમજી લેજો. નીચે વાળા ઉપર વાળા की जैसी तैसी कर सकता है, જે વિચારવું હોય તમારે. ઓકે, હવે રોડ ઉપરની है અને સોલ્યુશન નીચેનું है ને. ધ્યાન રાખજો. હવે मान लो કે આનો રોડ है, એજી નો રોડ है, मतलब એજી નો સળિયો है અને સોલ્યુશન ઝિંકનું है, તો ચલો રિએક્શન થશે. નહીં થાય. તો એ સમજી લો કે રોડ નીચેની જોઈએ તો કામ થાય, સળિયો નીચેનો જોઈશે. સમજ્યા તો સમજ્યા, નહીં તો કોઈ નહીં. સારું, હવે વધારે ના વિચારતા. હવે એને રોડના બદલે શું હોઈ શકે? રોડના બદલે એ લોકો એમ બી બોલ દે બીકર, અથવા એમ બી બોલ દે પીન, ખિલ્લી. ધારો કે એમ જો રોડ હોય અથવા બીકર હોય અથવા પીન હોય, ખિલ્લી હોય, અથવા સ્ટેચ્યુ બી કહી દે, મતલબ મૂર્તિ કોઈ શંકર ભગવાનની કે ગમે તેની મૂર્તિ, ગોદી બાપુની, ગમે તે. હવે તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે મારા જોડે જે બીકર હે ને એ ઝીંકનું હે, બીકર ઝીંકનું હે, ને એના અંદર જે દ્રાવણ ભરું ને સોલ્યુશન એ છે AgNO3 નું. તો ચલો આ બરોબર કહેવાય કે ના કહેવાય? આ વસ્તુ પ્રોપર કહેવાય કે ના કહેવાય? આવું કરાય કે ના કરાય? યસ ઓર નો? આવું ના કરાય, લોચા પડે. કેમ લોચા પડે?
તમે આમ જો આ જે બીકર અને ઝીંકનું હોય, તો ઝીંક અહીંયા આટલે અને એજી અહીંયા ઉપર, તો થશે કેવું, સોરી એજી અહીંયા અને આની અહીંયા એજી આટલે ઝીંક, તો એજીનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે, મતલબ એજીનું રિડક્શન થશે, તો થશે કેવું કે એજી રિડક્શન થશે, મતલબ એજી પ્લસમાંથી એજીમાં કન્વર્ટ થવાની કોશિશ કરશે પૂરેપૂરી એ, ક્લિયર? તો થશે કેવું કે અહીંયા રિએક્શન થઈ જશે કે ભાઈ AgNO3 है, એ ઝીંક જોડે રિએક્શન કરી નવું બનાવી દેશે ZnNO3 ટ્વાઇસ પ્લસ Ag, તો થશે કેવું કે તમારું જે આ પાત્ર है ને, તમારું જે બીકર, એમાંથી ઝીંક બહાર નીકળવા લાગશે અને સોલ્યુશનમાં રહેલા NO3 સાથે જોડાઈ અને ZnNO3 ટ્વાઇસ બનાવી દેશે, તો તમારા બીકરમાં ધીમે ધીમે કાણા પડશે, કેમ કે ઝીંક અંદરથી બહાર નીકળે તો બીકરમાં હોલ પડશે, તો શું થશે, સોલ્યુશન બધું બહાર નીકળી જશે, ફેદાઈ જશે, ક્લિયર? ઓકે, ચલો તમને ખબર પડી ગઈ. બીજો એક ક્વેશ્ચન है, મારા જોડે જે સોલ્યુશન है ને એ ZnSO4 નું, ચલો ZnSO4 નું સોલ્યુશન है, એના અંદર હું પીન નાખું, નાની નાની પીનો, સમજણ પડી ને, ખીલ્લીઓ પીનો, કોપરની પીને, ચલો એના અંદર પડી રાખું તો કોઈ વાંધો ખરો? સોલ્યુશન ZnSO4 નું અને પીનો કોપરની, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ખરી? ના રખાય. અર્થ્યા ZnSO4 ના સોલ્યુશનમાં કોપરની પીને, દેખો હવે તમે પીન અથવા રોડ અથવા બીકર અથવા સ્ટેચ્યુ, આ બધાને એક જેવું સમજો અને સોલ્યુશન વસ્તુ અલગ है. देखो સોલ્યુશન है ને એ ઉપરવાળાનું હોય તો નીચેવાળો બધું કરી શકે, અને સોલ્યુશન નીચેવાળાનું હોય ને તો ઉપરવાળા કોઈ ના કરી. ચલો હવે સોલ્યુશન ઉપરવાળાનું હોય કે નીચેવાળાનું હોય? સોલ્યુશન આનું હોય ઝીંકનું, અને પિન કોની है, કોપરની है, मतलब સોલ્યુશન નીચેવાળાનું, તો વાંધો નહીં આવે, આ એમના એમ પિન પડી રહેશે, કોઈ ફરક નહીં પડે, આમે ધોવાઈને સાફ થશે, વોશ થઈ જશે મસ્ત, બાકી પિનનું ઓક્સિડેશન નહીં થાય, ક્લિયર? ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન એવો હોય કે આ જે સોલ્યુશન है ને એ છે FeSO4 નું, ને અંદર જે है ને એ ઝીંકની है પિન, તો શું થશે? તો પિનમાંથી પીની બનશે કે નહીં બને? मतलब તમારી પીન है એ સોલ્યુબલ થવા લાગશે કે નહીં? થવા લાગશે, मेरा शेर आ गया है अब तो. થવા લાગશે, મતલબ કે આ પીન ધીમે ધીમે પીની બનશે, એને સોલ્યુબલ થવા લાગશે, કેમ કે એનું ઓક્સિડેશન થઈ જશે. ઓકે, ચલો હવે આના ઉપરથી બીજા ક્વેશ્ચન પૂછું. હવે એને મેટલના ક્વેશ્ચન પૂછ્યા આટલી વાર, હવે નોન મેટલના પૂછું. મારો એને કે આવીએ, હવે બ્રોમિન આવ્યો, ચલો તો થશે કેવું, હવે અહીંયા સમજો, આટલા આયોડીને, અહીંયા બ્રોમિને, હવે વેલ્યુ જુઓ તમે, કયો આયોડીન આ રહ્યો આટલે, અહીંયા આયોડીન, ક્લિયર? બ્રોમિન ક્યાં है, આ રહ્યો આટલે બ્રોમિન, ક્લિયર? તો ચલો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કોનું વધારે છે? બ્રોમિનનું. બ્રોમિનનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે, એન મતલબ બ્રોમિનનું રિડક્શન થશે, ક્લિયર? તો હાલ અહીંયા બ્રોમિન 0 હોય તો એ રિડક્શન થઈને -1 બની શકે, મતલબ એ શું કરશે, આયોડીને હટાવી દેશે અને આવું બનાવી દેશે KBr પ્લસ I2, 0 માંથી એ -1 માં કન્વર્ટ થઈ જશે, કેમ કે આયોડીન કરતા બ્રોમિનનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે છે, તો ધ્યાન રાખજો. નોન મેટલ્સમાં ઉલટું है, એમાં રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે હોય ને
તો સામે નીચેવાળો ઉપરવાળાનું કર નાખે. નોન મેટલ્સમાં ધ્યાન રાખજો, નોન મેટલમાં ઉપરવાળો નીચેવાળાનું કરે. સોન હા, નોન મેટલમાં ઉપરવાળો નીચેવાળાનું કરે નોન મેટલ્સમાં, અને મેટલ્સમાં નીચેવાળી ઉપરવાળીનું કરે. આ અલગ है मेटल नॉन मेटल में कंसेप्ट. देखो मेटल में समझो, મારી જોડે CuSO4 है. ચલો એકનું એક શું લઉં આખો દાડો CuSO4 બીજું લઉં. ચલો NaCl है. હવે એને મેં K ને મોકલ્યો. ચલો તો એને અહીંયા અને K અહીંયા. તો આ અમે નીચે આ ઉપર है તો બી થઈ જશે. મતલબ કે શું બનશે? KCl પ્લસ Na. તો મેટલમાં શું થયું? નીચેવાળાએ ઉપરવાળાનું કરી દીધું. ને નોન મેટલમાં ઊંધું है. જો બ્રોમિન ઉપર है, આયોડિન નીચે, તો બી બ્રોમિન આયોડિનનું કરી નાખે. ધ્યાન રાખજો, કેમ કે અહીંયા ઓક્સિડેશનની વાત છે, અહીંયા રિડક્શનની વાત છે. સારું, હવે બે ક્વેશ્ચન પૂછો, એના આન્સર આપજો એટલે ખબર પડી જશે મને. તમારે મને પ્રોડક્ટ કહેવાની એ શું બનશે. ચલો પહેલો ક્વેશ્ચન એવો હોય, CuCl2 પ્લસ Ag તો શું મળશે પ્રોડક્ટ? આ પહેલો. બીજો ક્વેશ્ચન એવો હોય કે Cl પ્લસ Br2 gives. આ બંનેમાં શું પ્રોડક્ટ મળશે કહી દો એટલે મને સમજણ પડે કે તમને શું આવડ્યું. પહેલીમાં શું મળશે પ્રોડક્ટ અને બીજીમાં શું મળશે? પહેલામાં નો પ્રોડક્ટ, નવ પ્રોડક્ટ મળશે. ઓહો, बगा कैल्शियम तो है ही नहीं अविनाश. कॉपर है मालिका. GCCU कॉपर. ને પ્રોડક્ટ મળે બોલો અવિનાશને. मौशेरा वाली तेरा शेर आ गया, तेरा बेटा आ गया. પહેલામાં શું થશે, બીજામાં શું થશે? क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम, क्या जानोगे. चलो भाई चलो आंसर. ला ध्वनिल डार्लिंग नहीं देखा थी. ध्वनिल डार्लिंग कहाँ है? नहीं है. ओके, प्रियंक बोलो बेटा શું આવશે જવાબ? हाँ, KBr प्लस Cl2. नहीं सर, KBr प्लस Cl2. ઓકે, બંનેમાં આન્સર આવશે નો પ્રોડક્ટ. આમાં બી નો પ્રોડક્ટ આવશે, આમાં બી નો પ્રોડક્ટ આવશે. બંનેમાં આન્સર નો પ્રોડક્ટ આવશે. ચલો તો હવે તમને મતલબ હવે બીજી ભાષામાં સમજાવવું પડશે. એક વસ્તુ સમજો, જેનું રિડક્શન, હવે ને અહીંયા ધ્યાન આપજો, બંનેમાં આન્સર તો નો પ્રોડક્ટ જ આવશે ને આટલી બધી વાર બી ના થવી જોઈએ આન્સર આવવામાં. ફટાફટ આન્સર આવી જવાય. હવે હું જે બોલું ને સાંભળજો. દેખો હવે એક એક વસ્તુ સમજો. જેનું રિડક્શન પોટેન્શિयल વધારે એનું रिडक्शन થાય, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा. तो હવે એને સમજો, क्या Ag એને 0 है? ક્લિયર? હવે Ag है 0, હવે Ag નું રિડક્શન થઈને શું બનશે? Ag માઇનસ બનશે. Ag નું રિડક્શન થઈને Ag માઇનસ છે. જોયું કદી આવું? તો Ag નું એને હવે રિડક્શન થાય એવું કશું હે નહીં. देखो આ બંનેમાં રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે કોનું? તો સમજો અહીંયા કોપર है, કોપર અહીંયા है, લાલથી બતાવો. અહીંયા કોપર है,
અને એજી અહીંયા છે. રિડક્શન પોટેન્શિયલ કોનું વધારે? એજીનું. હવે એજી અને એનું રિડક્શન ક્યારે થાય? સમજો, એજીનું રિડક્શન ક્યારે થાય? તો એજી પ્લસ હોય તો એનું રિડક્શન થાય. અગર એજી है તો એને રિડક્શન પામીને કોઈ ફાયદો નહીં है. એવું તો है નહીં કે એજી है તો એ રિડક્શન થઈને એજી માઇનસ બનશે. આ મેટલ है, ધાતુ है, તો એને ઇલેક્ટ્રોન લઈને મરી નહીં જવાનું. અગર એજી પ્લસ હશે તો ઇલેક્ટ્રોન લેશે. તો અહીંયા સમજો કે રિએક્શન શું કહી રહી છે કે એજી है અને રિડક્શન એજીનું થવું જોઈએ, પણ અહીંયા ઓલરેડી એજી રિડક્શન મોડમાં જ છે. એજી ઓલરેડી રિડક્શન મોડમાં છે. હવે એનું રિડક્શન થવાની કોઈ જરૂર જ નહીં, તો પછી રિએક્શન નહીં થાય. ક્લિયર? હવે બીજી રિએક્શન સમજો. બંનેમાં આન્સર ના મળે એવો આવે. હવે આમાં સમજો KCl માં એટલે Br2 માં. ચલો હવે Cl क्या है? RuCl. Br क्या है? RuBr. ચલો હવે रिडक्शन पोटेंशियल જેનું વધારે એનું रिडक्शन થાય. समझे पैटर्न? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा. चलो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा. क्लोरीन और ब्रोमीन, इनमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका? क्लोरीन का. चलो अभी क्लोरीन यहाँ पे कौन से मोड में? Cl माइनस में. तो अभी आप बोल रहे हैं कि ये Cl2 बनेगा, है ना? सब ऐसा बोल रहे हैं कि Cl माइनस में से Cl2 बनेगा. अरे नहीं बनेगा, ये -1 है. अगर ये Cl2 बना तो 0 होगा, मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन. तो नहीं होगा इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि ब्रोमीन से इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये खुद का रिडक्शन करेगा, Cl2 नहीं बनेगा. K प्लस से क्या लेना देना है? ये तो कॉमन ही है ना दोनों तरफ. K से क्या मतलब है? यहाँ पे तो ब्रोमीन आ रहा है ना क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाएगा. ब्रोमीन आ रहा है क्लोरीन की जगह लेने के लिए. यहाँ पे तो क्या एजी है ना, कॉपर के बदले आ रहा है. तब मैं इन दोनों को देख रहा हूँ. अभी ब्रोमीन आ रहा है क्लोरीन के बदले, तो इन दोनों को ही देखना है. इसको तो कोई मतलब ही नहीं है ना. मतलब ब्रोमीन क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा कि नहीं? तो ब्रोमीन में इतनी पावर नहीं है कि वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर पाए. समझे कि समझाऊं? चलो अभी दूसरा. ओके, अभी है ना लास्ट है ये मेरे पास. चलो K2Cr2O7 प्लस कहीं से भी आ गया. चलो MnO4 माइनस, कहीं से भी आ, आकाश पाताल कहीं से. ओके, और दूसरा है मेरे पास CaSO4 और कहीं से आ गया Pb. चलो अभी ऊपर वाले में क्या होगा, नीचे फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, और थर्ड तीन दे रहा हूँ मैं अभी. चलो मेरे पास है FeCl2 और कहीं से आ गया Br. चलो फिर क्या हो, और एक चौथा दे रहा हूँ. मेरे पास NaNO3 है ना, और कहीं से फ्लोरीन आ रहा है, तो क्या होगा? चारों के आंसर है ना, लिख के भेजो कमेंट में.
फर्स्ट में रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड भी नहीं होगी। पक्का है ना, आप लोग मरवाओगे मुझे। चलो अभी मैं दे रहा हूँ आंसर। भाई आंसर दे रहा है। कौन सा कलर लूँ? ये अच्छा है। देखो इसमें रिएक्शन होगी, बनेगा इसका KMnO4 और Cr2O7-2 बाहर निकलेगा। मतलब पर मैंगनेट आयन वो डाइक्रोमेट आयन को रिप्लेस कर देगा। पर मैंगनेट आयन डाइक्रोमेट आयन को रिप्लेस कर देगा। करेगा। समझ में आया? पर मैंगनेट आयन डाइक्रोमेट को रिप्लेस करेगा। ये ऐसा जरूर नहीं कि ये रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी। हम्म, अभी ये इसमें इसमें है ना, पीबी को पी के बदले कैल्शियम आना चाह रहा है। यहाँ पे बीबी, यहाँ पे कैल्शियम के बदले पीबी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे आएगा नो रिएक्शन, यहाँ पे भी नो रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन के बदले नहीं जा सकता। यहाँ पे चलो क्या होगा फोर्थ में। चौथे का आंसर नहीं दिया किसी ने। फर्स्ट में हो रही है रिएक्शन, वो दिखा रहा हूँ। चलो चौथे का बोल दो फटाफट लास्ट में। यहाँ पे देखो ये F2 है। अभी F किसकी पोजीशन लेगा? F आके क्या सोडियम की पोजीशन ले लेगा? F ऐसा बोलेगा सोडियम तू निकल, मैं रहूंगा तेरे बदले। F आके पोजीशन किसकी लेगा? NO3 की लेगा। मतलब रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, मतलब NO3 का रिडक्शन हो सकता है, और यहाँ पे बनेगा NF। अरे हाँ, एक मिनट। NO3-, वो तो पहले से +5 है ही। तो अभी फ्लोरीन का रिडक्शन करना हो तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, वो पॉसिबल है नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं हो, नो रिएक्शन है। हाँ मेरी गलती, इसमें नो रिएक्शन है। अभी इसमें देख रहा हूँ, इसमें इसका +7 है, अरे +6, इसका +7 है। चलो इसका रिडक्शन करना हो तो इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो होगा नहीं, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। सबकी सब नहीं होगी, सब में आंसर आएगा नो रिएक्शन। सब में आंसर नो रिएक्शन है। अभी समझा रहा हूँ कैसे आएगा। सब में नो रिएक्शन क्यों है, तो देखो ये दो तो आपको पता चल जाएगा। अभी फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली में नहीं समझ में आया होगा, वो दिखा रहा हूँ। देखो इसमें है ना K2Cr2O7 प्लस MnO4-। तो अभी है ना इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, तो क्रोमियम का इसमें +6 है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। Mn है ना, उसका रिडक्शन हो सकता है, Mn का रिडक्शन हो सकता है, लेकिन सामने इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? Mn का रिडक्शन हो सकता है क्योंकि वो +7 है,
तो वो +6 में जा सकता है, +4, +3, +2। मतलब MnO4 में Mn का +7 है, तो उसका रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी है कि वो कम हो, 7 से कम होता होता चला, क्योंकि Mn का हाईएस्ट +7 है, तो उससे कम हो सकता है। लेकिन अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो सामने किसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो तो फिर क्या होगा कि क्रोमियम +6 से बढ़ के +7 हो जाएगा अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि इसकी रिडक्शन पॉसिबल है, लेकिन सामने इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो होनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे है ना। देखो ये Cr2 7 - 2 नीचे है। देखो अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये रहा Cr2 7 नीचे है, और अपना MnO4- ऊपर है। तो नॉन मेटल में क्या होता है कि ऊपर वाला नीचे वाला क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी यह नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक का रिडक्शन होना तो सामने दूसरे का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और यहाँ पे क्रोमियम के पास स्पेस बची नहीं है कि वो और ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सके, तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। बाकी वैसे देखने जाए ना ऊपर नीचे तो दिख रही है, लेकिन सब ऊपर नीचे भी नहीं करना है काम। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने? और दूसरे वाला दिखा रहा हूँ, जिसको जिसको समझ में आया वो ऐसा है ना भेजना। दूसरा देखो, दूसरा ये था Na NO3, और कौन आ रहा था, फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन का रिडक्शन हो सकता है, मतलब है ना फ्लोरीन वो F- बन सकता है, वो जीरो में से माइनस बन, मतलब फ्लोरीन रिडक्शन के मोड में है, लेकिन सामने NO3 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देखो मैं अगर मार खा रहा हूं तो कोई मुझे मारेगा, बाकी मुझे मार खानी ही नहीं है तो कोई मुझे नहीं मार सकता। मतलब जब तक किसी और का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक फ्लोरीन का रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन को रिडक्शन करना है खुद का, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये NO3 है ना, इसमें N का +5 है। अभी नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन की लिमिट कितनी है? -3 से +5। अभी अगर फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो सामने NO3 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। NO3 का ऑक्सीडेशन कब होगा? जब उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से बढ़ेगा, तब होगा। लेकिन वो होगा नहीं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा नहीं, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, वो दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। क्लियर? जिसको जिसको समझ में आया वो अपना अंगूठा भेजे। एक दूसरा दिखा रहा हूँ मैं। चलो NaNO2 है मेरे पास। चलो अब फ्लोरीन आ रहा है, बताओ अब रिएक्शन होगा कि नहीं। चलो, और मेरे पास SO3 - 2 है। चलो SO3 मतलब Na2SO4 समझ लो आप। चलो Na2SO3 है, और MnO4 माइनस आ रहा है। चलो अब रिएक्शन होगा कि नहीं, अब आंसर देना। Na2SO3 है और MnO4 माइनस आ रहा है, तो अब मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं, पहले में और दूसरे में। होगा, थस है, क्योंकि इसमें है ना नाइट्रोजन का +3 है, और इसमें फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब फ्लोरीन खुद का रिडक्शन कर सकता है, और फ्लोरीन का अगर रिडक्शन हो रहा है तो किसी और का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और सामने वाला ऑक्सीडेशन हो सके वैसा है कि नहीं, तो है, क्योंकि यहाँ पे अभी नाइट्रोजन +3 है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होकर +5 तक जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी? तो NaF बन जाएगा, और सामने जो NO2 है ना, वो NO3- में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि NO2 से NO3 बन सकता है, क्योंकि अभी उसमें ऑक्सीडेशन होने के लिए थोड़ी जान बची है, मतलब उसके पास है अभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक पहुंचने की कैपेसिटी। लेकिन जब वो मैक्सिमम तक पहुंच गया है तो फिर बात खत्म। तो चाहे सामने कितना भी बड़ा आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो सल्फर का कितना है, +4, और यहाँ पे कौन आया,
MnO4 माइनस। चलो अभी देखते हैं सल्फर कहाँ है, SO3 - 2 कहाँ है, SO3 - 2 सीरीज में है नहीं, तो ढूंढो मत, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पे सल्फर का +4 है क्या, और MnO4 माइनस का है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो यहाँ पे MnO4 माइनस, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देखो इसका 2.87 है, तो इसका 2 तो होगा ही आराम से। मतलब MnO4 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उसका रिडक्शन हो सकता है, मतलब ये +7 से डिक्रीज कर सकता है ना, कम हो सकता है +7। लेकिन सामने इसको देखना पड़ेगा कि इसकी चड्डी है कि नहीं बढ़ने की। तो बढ़ने की चड्डी है इसकी, क्योंकि ये सल्फर +4 है, और सल्फर कितना जा सकता है, +6 तक। तो फिर ये जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, Mn2+ बनेगा, और सल्फर SO4 - 2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे फिर सल्फर का +6 हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे कुछ रिएक्शन पता करेंगे, उसमें फिर ऊपर नीचे वाला काम नहीं आएगा, उसमें चड्डी देखनी पड़ेगी कि सामने वाला मैक्सिमम से मतलब मैक्सिमम पे है कि मैक्सिमम तक जा सकता है, उस हिसाब से फिर काम करेंगे कुछ। ओके। चलो अभी एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको। मेरे पास है ना गैल्वेनिक सेल है। चलो गैल्वेनिक सेल, तो उसमें रिडक्शन किसका होगा ना, गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन किसका होगा। ओके, गैल्वेनिक सेल में किसका रिडक्शन होगा, कॉपर का, जिंक का, जिंक 2+ का, कि कॉपर 2+ का। गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन किसका होगा, मल्टीपल आंसर भी दे सकते हो आप लोग। गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन किसका होगा। आंसर आएगा डी, ओनली डी आएगा आंसर, है ना। देखो अभी रिडक्शन क्या होता है, तो अभी कॉपर का रिडक्शन होके क्या कॉपर -2 बनेगा। हम्म, बोलो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, आंसर खाली क्या आएगा, डी। ये तो पहले से रिड्यूस ही है, जो कॉपर 0 मतलब रिड्यूस हो ही चुका है, अब इसका ज़्यादा रिडक्शन नहीं हो सकता। ओके, अभी नहीं और पूछ रहा हूँ, है ना, ये जो नीचे है ना, ओके, उसमें से किसका रिडक्शन नहीं होगा। चलो आपको अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ, किसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है ना, रिडक्शन नहीं हो सकता इसका। चलो ClO4 - ClO3 - ClO- और Cl- और Cl2। चलो किसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, किसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। प्रथम क्यों चला गया, किसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ध्वनि लायो मेरो, नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, वो तो ऐसा बोल रहा था कि वाईफाई है उसके घर पे, दूसरा इश्यू लग रहा है मेरे को। तेरे को फोन है, हाँ कोई बात। तो वाईफाई है मतलब किसका, GTPL का है क्या, तभी हो रहा होगा नेटवर्क।
क्या आएगा आंसर इसमें? है ना, ये तस्वीर ने तो दे दिया है, बाकी के लोग क्या कब देंगे आंसर? क्या हुआ तेरा वादा, किसका रिडक्शन नहीं होगा, ऐसा पूछा है मैंने। किसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है? ध्वनि लाया मेरा। आगा, आजा आजा। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो ध्वनि आ गया, आ गया। आंसर आएगा डी। अभी है ना, रिडक्शन किसका नहीं होगा? तो पहले यहाँ पे देखो, क्लोरीन। क्लोरीन का -1 से +7 होता है ना। रिडक्शन किसको बोलते हैं? कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। मान लो जिसका +7 है, उसका तो डिक्रीज होके +6 होगा, +5 होगा, +4, +3, +2, +1, 0 और -1। अभी -1 से डिक्रीज कुछ नहीं हो सकता, है ना। -1 से तो कुछ कम जाएगा नहीं। अभी क्लोरीन ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन -5 हो जाएगा। -1 से ज्यादा नहीं जा सकता क्लोरीन, समझ रहे हो? तो जो +7 है, उसका रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि वो 6 में जा सकता है। मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकता है, यशस्वी बेन। ओके। वो जो +3 है, वो भी 2 में जाएगा, 0 में जाएगा। मतलब उसका भी रिडक्शन पॉसिबल है। लेकिन -1 अभी कहीं नहीं जा सकता। वो मतलब पूरा रिडक्शन हो ही चुका है उसका, जितना होना था उतना। तो यहाँ पे आपको है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। इसका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका +5, इसका आएगा क्या है, इसका +1 होगा। +1, इसका -1 और इसका 0। तो अभी -1 से कम ये हो नहीं सकता, मतलब इसका रिडक्शन नहीं होगा। ये होगा आंसर। चलो, ओके। चलो अभी ऑप्शन दे रहा हूँ, A B C D। है ना, किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ऐसा पूछा है मैंने। किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है? बताना है मेरे को, आपको। चलो, किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ऐसा पूछा है। चलो, किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है? एक पहला, एक दूसरा। पहले में आएगा बी। सही है, क्योंकि इसका पहले से ऑक्सीडेशन हो चुका है। अभी जिंक की क्या है, +2 से ज़्यादा आएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी +2 है। इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, कॉपर +1 में से कॉपर +2 बन जाए, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है कि स्कैंडियम +1 से +3 में जाए। यहाँ पे भी होगा कि भाई Fe2+ में से 3+ में जाए। मतलब बाकी सब में होने के चांस है। क्लियर? और ये सेकंड वाले में किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो मल्टीपल आंसर आएंगे। ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। है ना, क्योंकि इसका +6 है, तो अभी इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका +5 है, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका +7 है, तो इसका ज़्यादा नहीं। वो जानबूझ के मैंने मल्टीपल आंसर वाला दिया था, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। ओके। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है।
कई बार है ना ऐसा सेंटेंस लिखेंगे कि Br- का रिडक्शन हो रहा है, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? तो ध्यान रखना, गलत है, कभी नहीं हो सकता। Br- का रिडक्शन कभी नहीं हो सकता। कई बार ऐसे लिखते हैं कॉपर का रिडक्शन होता है गैल्वेनिक सेल में, गलत है। कॉपर 2+ का रिडक्शन होता है, कॉपर का नहीं होता है, तो ध्यान रखना। तो ऐसे सब सेंटेंस पूछते हैं। अभी TF-TT तो निकल गया है, वो तो अनिल सर ने हमको बताया है, लेकिन अपडेटेड वर्जन में कुछ भी पूछ सकते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, दूसरे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी। चलो दिखा रहा हूँ एक रिएक्शन। होमवर्क दे रहा हूँ। Fe2+ है, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Cr2O7 - 2 के साथ, और मिल रहा है मेरे को Fe3+, और दूसरा मिल रहा है क्रोमियम 3+, है ना। चलो इसके 5 मोल है, तो इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए? इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने में इसके हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, मतलब इसको कितना मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो Fe2+ है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन? डायक्रोमेट। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो है कि कितना मोल चाहिए डायक्रोमेट का? 5 मोल Fe3+ के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है वो डायक्रोमेट। चलो अभी क्या, अभी आंसर करो। हाँ, रेडॉक्स कंप्लीटेड, खत्म होने का आया। खाली ये स्टॉक नोटेशन करेंगे ना तो खत्म हो जाएगा रेडॉक्स। बाकी कलर चेंज की एक दो थियरी है आयोडीन वाली, वो समझा दूंगा। एक आयोडीन की आती है थियरी कलर चेंज की, वो है थोड़ी बुक से एक्स्ट्रा, बाकी कुछ है नहीं रेडॉक्स में। अरे कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो पूछा है। रेडॉक्स अभी कंप्लीट हो जाएगा 15-20 मिनट में। एक थियरी है कलर चेंज की आयोडीन की, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो करना इतनी ज़रूरी है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसके पास। और वैसे भी निकाल दी है वो आपकी बुक में से, पहले थी लेकिन अब निकाल दी है बुक वाले। चलो अभी समझा, सबके आंसर गलत है। चलो इसका 6 मोल, तब इसका 1 चाहिए। 6 के सामने इसका 1, तो इसके 5 के सामने इसका कितना चाहिए? तो क्या आएगा? 5/6। तो पहले इसके मोल कितने चाहिए? तो 5/6 चाहिए। क्लियर? ये हुआ आंसर। अभी ये है कि डायक्रोमेट कितना मोल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो देखना है अपने को। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो देखना है। हाँ, अर्थ का सही। तो अभी वो देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए, तो उसके लिए अभी थोड़ा है ना दिमाग यूज करना। चलो, इसके है ना 6 मोल, उसके लिए इतने कितने इलेक्ट्रॉन लिए वो देखते हैं। तो चलो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +12। मतलब 2 क्रोमियम का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +12।
समझ में आया? Cr2O7 - 2 में दो क्रोमियम का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर +12 है, और सामने ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? देखो Cr2O7 - 2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। तो देखो यहाँ पे इसका टोटल हो रहा है +12, और यहाँ पे इसका टोटल हो रहा है +6। ये कब हो रहा है? जब इसके 6 मोल है तब। मतलब यहाँ पे +12 से +6 हुआ, मतलब क्या हुआ कि 6 मोल इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, तब जाके ये हुआ होगा। 12 से 6 हुआ ना, मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन लिए उसने। तो 6 मोल Fe के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, तो 5 मोल Fe के लिए कितने लिए होंगे? तो आंसर आएगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। किसको समझ में आया ये? 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा इसने। इसको समझ में आया, वो ऐसा करे। ना समझ में आया तो फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। नहीं समझ में आया तो नहीं लिख के भेजो, तो फिर समझाता हूँ। नहीं आया ना समझ में? वेरी गुड। चलो तो दूसरे इस तरीका से इस्तेमाल करते। चलो दूसरी रिएक्शन, चलो ये वाली देखो, जूम कर देना इसको। अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछो कि मेरे पास MnO4- इसके 4 मोल है ना, उसका मेरे को कंप्लीट रिडक्शन करना है MnO4-। और यही क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएंगे, यही क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएंगे। MnO4- के 4 मोल है, उसका कंप्लीट रिडक्शन करना है, तो Br- के कितने मोल चाहिए? Br- के कितने मोल्स चाहिए? और ये रिएक्शन होने में ब्रोमीन कितने मोल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा? Br- कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा? दो क्वेश्चन है, वापस यही समझाओ सर। हाँ समझा रहा हूँ। पहले चलो पहले वाले का आंसर दो। 4 मोल MnO4- है, उसका रिडक्शन के लिए Br- के कितने मोल्स चाहिए? रिएक्शन का पूरा इक्विलिब्रियम इधर किया हुआ है, देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। बाकी आपको रिएक्शन ये दिया होगा, इस स्टेप तक आपको खुद जाना है, ये आपका काम होता है, सेल्फ वर्क। और ये काम कैसे करना है वो आपको अगर नहीं आ रहा है तो फिर बोलना होगा, उनके लिए एक पर्सनल लेक्चर अरेंज कर देंगे। बाकी जनरल लेक्चर में इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है अभी। चलो खाली ये पहले का आंसर दे दो। देखो यहाँ पे देखो आराम से, प्रथम समझना बेटा, और राज तू भी। देखो इसका 2 मोल है, इसको जूम कर दो, और यहाँ पे ब्रोमीन का 1, मतलब MnO4 का 2 मोल के लिए ब्रोमीन कितना चाहिए? 1। तो MnO4 के 4 मोल के लिए ब्रोमीन के मोल कितने चाहिएंगे? क्या आएगा आंसर? ये MnO4-, हाँ, और ये ब्रोमीन, तो आंसर आएगा 2। मतलब डायरेक्ट यहाँ से देख के बोलना है आपको। अभी पूछा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इससे काम नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के लिए देखना पड़ता है कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें कितना फर्क पड़ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, उसको चेक करेंगे। चलो अभी इलेक्ट्रॉन का समझा रहा हूँ। चलो यहाँ पे है ना,
ये इधर देखो, चलो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। और ब्रोमीन कन्वर्ट किस में हो रहा है, BrO3 माइनस में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +5। मतलब समझो अपने पास था क्या, Br माइनस, वो कन्वर्ट हुआ BrO3 माइनस में। मतलब ये -1 से +5 में गया। मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, अरे कितने इलेक्ट्रॉन दिए, अगर -1 से +5 हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस्ट किए, चलो वो बताओ मेरे को। 6। -1 से +5 हो रहा है, मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन इसके गए। राज, समझ में आ रही है बात। देखो ब्रोमीन -1 था, मतलब कि ये ब्रोमीन है, ये -1 था, मतलब मैं समझ लो मैं ब्रोमीन हूँ और मेरे ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये -1 था। फिर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये Br बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Br+, और निकला Br+2, एक और निकला Br+3, एक और निकला Br+4, एक और निकला तो Br+5। मतलब Br+5 कब बनता है Br माइनस से, जब 6 इलेक्ट्रॉन निकलते। समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो, फिर से देखना पड़ेगा अभी। चलो अभी जो समझने वाले होंगे उनका तो आंसर अल्लाह। हाँ, थैंक यू। स्क्रीन आ गई आपके अंदर। चलो, तो ये -1 से ये +5 हुआ। पर अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका 1 मोल, इसके सामने इसके कितने, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल MnO4- इसके लिए ब्रोमीन 6 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है। 2 मोल MnO4- उसको रिड्यूस करने के लिए ब्रोमीन 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है। तो 4 मोल के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, तो आंसर आएगा 12। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन विल लॉस, तो क्या आएगा 12। अभी आपको है ना ऐसा लगेगा, सर ये सब सीख के हमें क्या फायदा, क्या करेंगे हम ये सब सीख के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने दो फिर बताएंगे। चलो आ गया समझ में अब, राजू मेरी जान। चलो, तो ये होता है। चलो एक आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन। कितना प्यारा तुझे रब ने बना, जी करे देखता रहूं। ओके, ये है लास्ट ऐप ही है ना। ये है ना। ओके, ये टॉपिक बाकी है, इसमें से ज़्यादा MCQ आते हैं, लेकिन ये तो समझाना पड़ेगा। और ये ना एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है इतना कि इसके लिए तो लैब चाहिए। हाँ, तो आपके सिलेबस में है, ये मोस्ट IMP टॉपिक है। ये ध्यान रखना, पेज नंबर 277। अभी मैं इसको बाकी रख रहा हूँ, मतलब ये रेडॉक्स में बाकी रहेगा अभी। देखेंगे अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ मैं ऑनलाइन तो ठीक, बाकी इसको ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आयोडीन और जो थायोनेट की जो रिएक्शन होती है, इसमें कलर चेंज और ये सब समझना पड़ता है। पूरे रेडॉक्स में सबसे मोस्ट IMP टॉपिक ये है, ध्यान रखना, पेज नंबर इसका 277 है ना। ये सबसे मोस्ट है। ये एक टॉपिक बाकी रहेगा अपना खाली, बाकी सब खत्म। ओके, चलो अभी यहाँ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। चलो यहीं से ले लो। चलो यही स्टेप, ये होमवर्क है। ओके, 1 मोल I-, 1 मोल I-, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना मोल MnO4- चाहिए, ये एक क्वेश्चन। 1 मोल I-, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए MnO4- का
कितना मोल चाहिए, और ये रिएक्शन होते वक्त MnO4 माइनस टोटल हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हाँ, क्योंकि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हाँ, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये आपका होमवर्क। और अभी भी किसी को आंसर देना है तो दे सकता है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। और अपना अभी स्टॉक नोटेशन करेंगे, वो बस 10-15 मिनट का टॉपिक है, बाकी रेडॉक्स में कुछ है नहीं। वो 277 वाला पेज है, उस पर एक टॉपिक बाकी रहेगा। चलो 1/3 तो आ गया। अभी मोल्स, कितना मोल इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो भी बता दो, लगे हाथ। कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया वो भी बता दो। 1/3 सही है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। चलो इसके 6 के लिए इसका 2, तो इसके 1 के लिए इसका कितना, 1 × 2/6, मतलब 1/3। चलो ये तो सही है। अभी इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया वो बताओ। इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया वो बताओ। 10, ओके, 14 માંથી 10 એટલે 6 મોલ માટે 4, તો 1 મોલ માટે કેટલા? ચલો, देखो अभी कैसा है। तो MnO4 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +7। यहाँ पे 2 Mn है, तो टोटल कितना हुआ, प्लस +14। और यहाँ पे Mn का आएगा +4, तो 2 Mn का कितना हुआ, +8। तो इसका वो देखो 6 मोल है, इसके 6 मोल के लिए इसमें कितना फर्क पड़ा, 6 का। तो 6 मोल के लिए 6 का, तो 1 मोल के लिए कितना, तो 1 मोल। प्रथम का सही आंसर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा उसने। जय का गलत है, ध्वनिल का गलत है। हाँ, देख प्रथम कैसे खुश हो गया। ध्वनिल का गलत, 2/3 नहीं आएगा। जय का गलत ना, प्रथम का सही है। चलो, जली जली फिर जली। ओके, प्रथम जी। चलो अभी लास्ट वाला टॉपिक देख रहे हैं, स्टॉक नोटेशन। और हाँ, वो 277 पे जो है ना, वो बोल दूं मैं आपको, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो मैंने है ना आपको एक दिया होगा कि मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी समझाऊंगा, उसमें ये समझ में आएगा
इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। खाली क्वेश्चन समझ लो। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई KMnO4 है और ऑक्जेलिक एसिड है। तो एक तो इसके टाइट्रेशन आते हैं, आप है ना लैब में किए भी होंगे कि ब्यूरेट में KMnO4 भर दो, फिर पनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड लो और टाइट्रेशन करो। एक तो इसके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आयोडीन और थायोनेट के। इसमें क्या होता है कि थायोनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो बीकर में भर देते हैं और फिर आयोडीन से उसका टाइट्रेशन करते हैं। इसके क्वेश्चन आते हैं। इस पर टेम्परेचर इफेक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो अनिल, बिल गेस्टे શું કીધું તું ખબર હે? નેવર લીવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. તમને એક બી મોકો મળે ને તો એ છોડવાનો નહીં. અને ખાસ કરીને એલન વાળાને ઝાટકાવાનો મોકો મળે ને તો કદી નહીં છોડવાનો. દેખો ધોનીલે મને પર્સનલમાં મેસેજ કર્યો કે સર તમે મારે ખોટું પડે ને તો મને ઝાટકાવાનો એક બી મોકો છોડતા નહીં. ના જ છોડાય. બિલ ગેટ્સનો કોન્સેપ્ટ है, never leave opportunities. if you leave opportunities then you never succeed. चलो, स्टॉक नोटेशन. ओके, तो स्टॉक नोटेशन में समझी लेजो कि स्टॉक नोटेशन એમાં એક તો ઓક્સિડેશન નંબર અને તમારે રોમન લેંગ્વેજમાં લખવાના है. આ એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ. ઓક્સિડેશન નંબરને રોમન લેંગ્વેજમાં લખવાના है. मतलब આવી રીતે 1 2 3 એટલે ભાઈ આવી રીતે 4 5 એ લીટા કરી દેવાના એટલે ભાઈ આ 6. તો જે બી રોમન નંબરમાં આવે એમાં લખવાના પહેલું સ્ટોક નોટેશનમાં પહેલી વાત. ક્લિયર? ચલો હવે બીજી વાત. સ્ટોક નોટેશનમાં વાત નંબર 2. ઓકે, કે એસ બ્લોકની અગર મેટલ है તો એનો ઓક્સિડેશન નંબર, मतलब એસ બ્લોક મેટલ માટે સ્ટોક નોટેશન નહીં કરવાનું આ મોસ્ટ આઈએમપી. અગર એસ બ્લોકની મેટલ है તો એના માટે સ્ટોક નોટેશન નથી કરવાનું, मतलब એનો ઓક્સિડેશન નંબર નહીં લખવાનો. આ મોસ્ટ આઈएमपी स्क्रीनशॉट લઈ લેજો. अगर एस ब्लॉक का मेटल है तो उसका स्टॉक नोटेशन नहीं करना है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख सकते अगर एस ब्लॉक का मेटल है तो. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक स्टॉक नोटेशन. ओके, चलो. स्टॉक नोटेशन खास करके डी और पी और एफ ब्लॉक एलिमेंट उनकी मेटल्स के लिए होता है. ओके, चलो. स्टॉक नोटेशन में क्या करना होता है तो देखो एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ. स्टॉक नोटेशन में दो चीज होती है, एक तो स्टॉक नोटेशन से नाम बनाने का आता है और एक बोलते हैं खाली उसको स्टॉक नोटेशन सिस्टम से दिखाओ. मान लो मेरे को Fe2O3 दिया और मेरे को बोला कि खाली इसका स्टॉक नोटेशन सिस्टम से रिप्रेजेंट करो, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा Fe2 3 और फिर लिख दूंगा O3. मतलब मैंने क्या किया, Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो रोमन में Fe के बिल्कुल नज़दीक ब्रैकेट बना के लिख दिया, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन. अब दूसरा होता है इसका नाम लिखने का, तो इसका नाम लिखेंगे Iron 3 ऑक्साइड. अगर नाम लिखने को बोले तो, नाम लिखने का बोलने का चांस बहुत कम है, खाली ऐसे दिखाने को ही बोलेंगे. चलो अभी इधर मान लो कि Cu2 है, तो अभी किसको स्टॉक नोटेशन में दिखाएंगे कैसे, तो ऐसे दिखाएंगे Cu2 1O, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है बस, तो खाली इसको ऐसे दिखाना है. और अगर नाम लिखना है तो भी लिख सकते हैं Cuprous 1 ऑक्साइड. देखो कॉपर का अगर 1 है ना तो क्यूप्रस बोलेंगे, इसका 2 है तो क्यूप्रिक बोलेंगे. हाँ, आप इसको फेरिक बोलना हो तो बोल सकते हैं क्योंकि ये 3 है, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे Fe3 ऑक्साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेरिक लिखो कि आयन लिखो. और इसमें भी अगर क्यूप्रस नहीं आ रहा है आपको तो कॉपर लिख सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में क्यूप्रस दिया हुआ है तो फिर सोचना पड़ेगा. चलो अभी मैं आपको एक दो स्टॉक नोटेशन दे रहा हूँ, फटाफट मेरे को उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. देखो मैं है ना दे रहा हूँ, उसका कैसे आपको लिख के भेजना है एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ.
चलो मैंने आपको ये दिया TiO2, तो आपको दो आंसर देने हैं इसके। एक आंसर ऐसा देना है Ti2O2, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा आपको है ना लिख के भेजना है कि टाइटेनियम 2 ऑक्साइड। तो ऐसे दो टाइप के आंसर आपके आने चाहिए। चलो अभी आपके लिए पहला है ये FeO है। चलो दूसरा है आपके लिए SnO2। चलो ये दो ही है अभी आपके। फटाफट इसके आंसर भेजो। खत्म स्टॉक नोटेशन, इतना ही होता है। हाँ, और तीसरा है MgCl2। जो इसका आंसर देगा ना, 5 रुपये रोकड़े। जय जोशी, 5 रुपये रोकड़े। मेरे को लगता है ना तेरी फीस खत्म हो जाएगी बस ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते। Fe2O, फेरस 2 ऑक्साइड, सही है। सही है। प्रथम का सही है, ध्वनिल का सही है, अर्थ का सही है। आने दो आने दो। वैसे तो है ना एवरीवन आंसर में मजा ज्यादा आता है, लेकिन कुछ लोग फिर क्या है कॉपी पेस्ट करते हैं। और इसमें है ना वो ऐसे दबाने से कॉपी हो जाती है। हम्म, फिर SN4। अरे Cl3 कहाँ है SN में? इतनी जल्दी क्यों कर रहा है प्रथम तू? SN में कहाँ Cl3 है? ऑक्सीजन है उसके पास। अरे भाई जल्दी का काम तो शैतान का होता है। इंसान को तो धैर्य रखना चाहिए। देखा नहीं क्या धमाल तुमने? जय का सही है। जल्दी का काम तो शैतान का होता है। इंसान को तो धैर्य रखना चाहिए। ओहो, अर्थ फादर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर थियरी। टीन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। देखो टीन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। किंग ऑफ ऑक्सीडेशन अर्थ मोर इज हियर विद अस इन दिस मीटिंग। वाह मेरे ध्वनिल, 5 रुपए जीत गया तू। हाँ स्टेनस। स्टेनस बोलो, स्टेनस बोलेंगे हम SN+4 को। अब मैं फिर से बोलेगा मिस्टेक हो गई। अर्थ, अरे नहीं प्रथम है। स्टेनस नहीं बोलेंगे उसको। SN के दो आते हैं, एक SN+2 आता है, एक SN+4 आता है। स्टेनस इसको बोलते हैं, और ये होता है स्टेनिक। हम्म। और स्टेनस स्टेनिक में कंफ्यूजन है ना, तो टीन ही अच्छा है। टीन लिख लेगा टीन। स्टेनस नहीं आएगा बेटा, स्टेनिक आएगा वो। और वो स्टेनस वाला दूसरा कहाँ गया? अर्थ, उसने भी लगता है स्टेनस ही लिखा है। नहीं उसने तो लिखा ही नहीं, तू ही था। आ, तो वो स्टेनस नहीं आएगा बेटा, स्टेनिक आएगा। हाँ वो टीना लिखा है तूने। चलो, इसका कौन बना रहा है MgCl2 का? वो मेरे को चाहिए वाला क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन। लिख दिया। अर्थ ने MG वाले का, अरे वाह मेरे शेर, Mg2Cl2। मेरे को तो आता भी नहीं है वो। वाह अर्थ वाह। एक बार है ना अर्थ के लिए जोरदार गालियां, जोर जोर से। मीटिंग में जितने भी है सब। अरे मैं पहले बोला कि एस ब्लॉक का एलिमेंट, उसका स्टॉक नोटेशन नहीं करना है। तो मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक का है? हम्म तो इसका नहीं होगा। ये एस ब्लॉक का है। तो अनिल का सही था, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट का स्टॉक नोटेशन नहीं होता है। तो मैं MgCl2 का नहीं करना, याद रखना। एक्सेप्शन में से आएंगे क्वेश्चन, केमिस्ट्री है ये। रूल से ज्यादा तो एक्सेप्शन होते हैं यहाँ पे।
चलो एलन वाले देखो अभी हंस रहे हैं। चलो, मैंने बताया ही था, वो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बाकी मैं पहले बोला कि एस ब्लॉक के लिए स्टॉक नोटेशन होता नहीं है, जब थियरी स्टार्ट किया उससे पहले ही बोल दिया था। कोई बात नहीं, चलो होता है, होता है, होता है। अभी चलो इसके एक वैसा होता है K2Cr2O7। अभी इसका स्टॉक नोटेशन कैसे करेंगे? तो देखो, ये तो एस ब्लॉक का, इसका नाम लिख सकते हैं लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, एस वालों का आप नाम ले सकते हो लेकिन उनका नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो एस वाला है ना। तो इसका आप नाम लिख सकते हैं, पोटेशियम। क्लियर? फिर इसको पूरा बोलना है डाइक्रोमेट, इसको पूरा बोलेंगे डाइक्रोमेट। और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का लिखेंगे 6। समझ में आया? गलत है। हाँ, वो ब्रैकेट करके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और बाद में लिखेंगे 6। वैसा का वैसा एक दूसरा दिखा रहा हूँ, चलो क्या MnO4। चलो इसका बताओ। ओरे ओ राजा, जल्दी से आजा, आंसर आंसर दे नहीं। क्या MnO4। ना था सर। हाय हाय, असारी। प्रथम या, तू मार खाएगा। देखो अभी इसका क्या होगा। ना था वाड़ा माओ, असारी। मैंगनीज નું તો થશે, આનું નહીં થાય, આ તો ડી બ્લોક માંથી હે। ચલો, તો શું થશે? પોટેશિયમ, પછી આને MnO4 માઇનસ, આ નામ है पर मैंगनेट। क्या नाम है इसका? पर मैंगनेट। प्रथम मैंगनेट होता है MnO4-2, ये है MnO4 माइनस, तो ये पर मैंगनेट होगा, है ना बेटा? मैंगनेट MnO4-2 होगा, ये -1 है, तो इसका बनेगा पोटेशियम पर मैंगनेट। कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये हो गया 7। गालियां तो खाली एलन वालों को ही मिलेगी। हम्म, एलन में वालों को क्यों गाली दे रहा हूँ, समझो। वो लोग यहाँ पे इतना अच्छा मिल रहा है, फिर भी छोड़ के, ज्यादा फीस दे के वहां पढ़ने जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसका आएगा पोटेशियम पर मैंगनेट 7। ठीक है। अगर ऐसा पूछूं मैं, K2MnO4, तो चलो इसका क्या आएगा, जल्दी जल्दी। K2MnO4, इसका क्या आएगा? आ जाओ जल्दी फटाफट। हम्म, एलन वाले सावधान रहे। मुझे ना दो लोग तो बहुत अच्छे लगते हैं, एक एलन वाले और एक गोविंदा वाले, मेरे फेवरेट शिकार है। दोनों के दोनों। इनको मैं इतना प्यार करता हूँ ना, किसी से नहीं किया आज तक। हाँ, इसका आएगा पोटेशियम मैंगनेट 6। और यहाँ पे है ना, दो पोटेशियम है, तो है ना, कोई डाई पोटेशियम मत लिखना। ये एस ब्लॉक वाले कितने हैं उसका नंबर लिखना नहीं होता है। मतलब कोई अगर है ना, ज्यादा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे कर देगा कि सर यहाँ पे दो क्रोमियम थे तो डाई क्रोमेट किया, तो यहाँ पे दो पोटेशियम, तो डाई पोटेशियम, तो इतना डाया नहीं होना है ना, चाहे दो, फिर भी पोटेशियम ही लिखना है, डाई पोटेशियम नहीं लिखना, है ना। कम डाया होना है। चलो, लागू पड़े है ना बत्ती। ओके, चलो કહું પછી બાયોલોજી ફિઝિક્સ નું શું કરવાનું? ઓકે, હવે લાસ્ટ બે આપું છું, જેને આવડી ગયું
એને આવડી ગયું. HAuCl4, एक तो इसका करो स्टॉक नोटेशन, और दूसरा क्या था, वो भूल गया बात में. हाँ, Na2CrO4, इन दो का स्टॉक नोटेशन करो बस. उसके बाद खाली देखना है कि टॉपिक चैप्टर में कुछ बाकी रहा कि नहीं, बस बाकी आ जाएगा. इन दोनों का अगर सही हुआ ना, बस तो फिर तो मान लो आपका ये जो मनुष्य अवतार आपको मिला है ना, सफल हो गया. HAuCl4 और Na2CrO4, इन दोनों का स्टॉक नोटेशन. मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर अर्थ को मार देंगे, ऐसा मेरे मतलब दिल से आवाज आ रही है अंदर से. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें अर्थ ही सही बोल पाएगा. मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब न डरूं, जी से मैं प्यार करूं. सेकंड में सोडियम क्रोमेट 6, तो सेकंड नहीं चाहिए, મારે ફર્સ્ટ નું चाहिए. બોલો કેવા માણસો, સેકન્ડ નું પહેલા હાલશે આન્સર અને ફર્સ્ટ નું નહીં હાલે. પહેલી ઓપોર્ચ્યુનિટી ને જવા દીધી, બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટી લીધી. આટલું આટલું સમજાવું કે બિલ ગેટ્સે એવું કીધું હે કે જે પહેલી ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય એને ક્યારે મિસ નહીં કરવાની. અમારા કોલેજમાં એક છોકરી હતી, હવે નામ નહીં બોલતો, વિડીયો યુટ્યુબમાં મૂકવાનો એટલે. હવે એ છોકરીને મેં પ્રપોઝ કર્યો જઈને, મારી બેટીએ ના પાડી. હવે પછતાવો કરે કે આ પાડ્યું હતું સારું હતું. એને હવે ખબર પડી કે શું રૂલ હે બિલ ગેટ્સનો. આપણા ફોટા જોવે ને બધા બૈરા આગા ફરવા ગયેલા ને બધા. પછી મેસેજ કરે કે સાગરા ના ના પાડ્યું હતું સારું હતું. ओहो, नाम बताओ फर्स्ट वाले का. नाम चाहिए मुझे. पहले वाले का आंसर नहीं आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो. मतलब जो पहले है ना, वो एक्सेप्ट करो. उसको आज बहुत पछतावा हो रहा है. अपॉर्चुनिटी जाने दी. हाइड्रोजन और क्लोराइड. ओहो, सही है, सही है, सही है. चलो अभी इसका तो सबको आ गया होगा. सोडियम, सोडियम क्रोमेट और 6. अभी इसका देखते हैं. तो इसको बोलना हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन. अभी इसको है ना ऑरम को ऑरम ही बोल दो, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3. ऑरम भी बोल दो, और इसको ऑरिक बोरिक नहीं बोलना है, क्योंकि ऑरम का एक ही होता है, +3 होता है, इसमें वेरिएबल नहीं करता ऑक्सीडेशन नंबर. तो हाइड्रोजन ऑरम 3 और क्लोराइड होगा. यहाँ पे देखो क्लोरीन 4 है, फिर भी है ना मैंने टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखा, खाली क्लोराइड ही लिखा है. तो वो सब चीज़ ध्यान रखना. क्लियर. तो हाइड्रोजन ऑरम 3 क्लोराइड अच्छा है, सही था, है ना, सही है. और एक वाला भी सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ओके, स्टॉक नोटेशन हो गया आपका. अभी फटाफट खाली मैं पेज निकाल के देख रहा हूँ चैप्टर में क्या कुछ बाकी रह गया. चलो ये हो गया, ये हुआ है.
आप देख लेना जूम करके, खाली ऑक्सीडेशन नंबर समझा। ये भी सब हो गया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये स्टॉक नंबर था, वो भी हो गया अपना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड करना है वो सब सिखाया हुआ है मैंने। चलो, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी अपने हो गई है। अरे वो रमेश और परमवीर कहाँ गए? नहीं तो उनका एक भी आंसर आया नहीं, मैसेज कुछ अता पता नहीं, कहाँ है वो। चलो ये भी हो गया। एब्सेंट है। चलो ये भी हो गया, ये भी करवा दिया। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आपको खुद करना है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ये टॉपिक सेल्फ वर्क का है। हाँ, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो फिर मैसेज करना व्हाट्सएप पे, करवा देंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसमें दो मेथड है, आप एक से हो गया। चलो ये सब करवा दो। इस पर से जो क्वेश्चन पूछना था ना, वो पूछ लिया मैंने। इस पर से जो क्वेश्चन पूछना था वो पूछ लिया था, कि इसमें रिडक्शन किसका होता है, CO2+ का। बाकी सब ज़्यादा बात इस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा बातें करेंगे। चलो ये EMF सीरीज हो गया, बस एक्सरसाइज आ गई। तो इतना ही है चैप्टर में, खाली एक पेज मैंने नहीं पढ़ाया आपको, 277, लेकिन ये प्रैक्टिकल का पेज है। ये फिर देखूंगा मैं कि क्या हो रहा है इसका। ओके, जय श्री कृष्ण, गुड बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, जो भी नेकड़ो है बता बेटा। कोई ना कुछ पूछो है तो पूछो, बाकी बता बटवान करो। हो, जय अर्बुदा, जय श्री कृष्ण। पूरू पूरू, चैप्टर पूरू भाई। હા હવે કાલ સવારે ઓર્ગેનિકમાં પ્રોટોમેરિઝમ કરીને આવજો, અને સ્ટેબિલિટી, કાર્બોકેટાયન કાર્બો એનાયનની, બસ આટલું જ. કેટલા વાગે? જેટલા વાગે આવું એટલા વાગે. 10 વાગે આવજો, ઓર્ગેનિક 10 વાગે. હમ સારું, હવે હેડો જમવાનું મારે.